ایران کی ایٹمی طاقت کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ جب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا ایران سے نہیں جائیں گے۔ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں لیکن جلد نکلنا نہیں چاہتے۔ ہم ہر 2 سال بعد ایران پر حملے کے لیے نہیں جا سکتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں ایرانی بحریہ کو سمندر کو ڈبو دیا ہے، جبکہ امریکی افواج نے 58 ایرانی بحری جہاز تباہ کر دیے۔ ایرانی فضائیہ کو مکمل ختم کر دیا ہے۔ ایران کے پاس اب کوئی ریڈار نہیں۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی 31 کشتیاں تباہ کی ہیں۔ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے امریکی اسٹریٹجک تیل ذخائر سے فائدہ اٹھائیں گے۔ IAEA کے اسٹریٹجک ذخائر سے تیل UN کی سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف خلیجی ممالک کی قرارداد منظور۔ ایران سے خلیجی ریاستوں کے خلاف حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ قرارداد کا مسودہ خلیجی ممالک کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ پاکستان سمیت 13 ممالک نے ایران کے خلاف قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا۔ روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، تاہم مخالفت بھی نہیں کی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ایران خطے کے ممالک کے خلاف اپنی کارروائیاں روک دے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ ایرانی مندوب نے سلامتی کونسل اجلاس میں کہا UN کی جانب سے آج کا اقدام سیاسی ہے۔ جو قرارداد منظور کی گئی اس پر ایران میں وحشیانہ حملے کا ذکر نہیں۔ ایران امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنا۔ کسی آزاد ریاست پر حملہ آور قیادت کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ حملوں میں امریکہ، اسرائیل نے اسکولز، رہائشی علاقوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ UN کے قراردادوں کے مطابق ایران نے خطے میں دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سلامتی کونسل میں روس کی جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ امریکہ نے روس کی جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ قرارداد کے حق میں 4 اور مخالفت میں 2 ووٹ ڈالے گئے۔ 9 اراکین غیر حاضر رہے۔ روسی مندوب کا کہنا ہے کہ روس کی قرارداد کو مسترد کرنا قابل افسوس ہے۔ ممبران نے کوئی ٹھوس وجہ نہیں دی کہ قرارداد کو کیوں مسترد کیا گیا۔ قرارداد پر ووٹنگ کرانا ایک ٹیسٹ کیس تھا۔ قرارداد کے بعد سب کے چہرے سامنے آ گئے۔ پوری دنیا جان جائے گی کہ اقوام متحدہ کے ممبران کیا نیت رکھتے ہیں۔ کسی ملک کی شہری آبادی پر حملہ کرنا ناقابل قبول ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال تب بگڑی جب امریکہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ چینی مندوب نے کہا روس نے فوری جنگ بندی اور مذاکرات کی بات کی۔ جنگ کو ختم کر کے مذاکرات کرنا واحد حل ہے۔ پاکستان کے UN میں پڑوسی ممالک پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ پاکستان نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی بھی مذمت کی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں ایران پر حملوں نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان برادر ملک ایران کی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کرتا ہے۔ ایران پر غیر ضروری حملے کر کے خطے کو تنازع میں دھکیل دیا گیا۔ ایسے حملوں سے شدید انسانی بحران پیدا ہوتے ہیں۔ UAE پر ایرانی حملوں سے 2 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ روس جانتا ہے اس کے پاس ووٹ نہیں لیکن پھر بھی قرارداد پیش کی۔ امریکی مندوب کہتے ہیں روس نے اپنے دوست چین کا ساتھ دینے کے لیے ووٹ اور قرارداد پیش کی۔ مشرق وسطی میں ایران نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جس کی اقوام متحدہ اجازت نہیں دیتا۔ اماراتی مندوب کا ایران کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ۔ اماراتی مندوب ابو شہاب نے کہا بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے ایرانی حملے سنگین خطرہ ہیں۔ ایران کے حملے دہشت پھیلانے کی کوششیں ہیں۔ ایرانی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ خلیجی ممالک نے صبر اور باہمی اتحاد کا ثبوت دیا۔ جنگ ختم کرنے کا واحد طریقہ ایران کے آئینی حقوق کو تسلیم کرنا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹویٹر پیغام، کہا ہر جانا اور مستقبل کی جارحیت کے خلاف مضبوط عالمی ضمانتیں فراہم کرنا ہوں گی۔ روس اور پاکستان کی قیادت سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ میں نے خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ جنگ صہیونی حکومت اور امریکہ نے بھڑکائی ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की फ़ोन पर गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान पर हमलों से मुतल्लिक़ अहम मुशावरत। ईरान मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म का ख़ित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे और अमन की ज़रूरत पर जोर। ईरान इलाक़ाई ममालिक से महाजराई नहीं करेगा। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दहानी। कहा दुनिया जंग के ज़िम्मेदारों पर तवज्जो दे। अमरीका और ईरान की जानिब से ईरान को निशाना बनाने के अमल पर आलमी बरादरी ने खामोशी इख्तियार की तो आलमी अमन और सलामती का ढांचा बिखर सकता है। आबनाए हॉर्मुज़ पर कंट्रोल और तेल की सप्लाई बहाल कराने के लिए जंग। अमरीका जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक खलीजी पानियों में आज 3 बहरी जहाज़ मिसाइल हमलों का निशाना बने। थाईलैंड का कार्गो जहाज़, जापान में रजिस्टर्ड कंटेनर जहाज़, मार्शल आइलैंड में रजिस्टर्ड जहाज़ शामिल। तनाज़े के आगाज से अब तक 13 जहाज़ों पर हमला किया जा चुका। ईरानी फौज का कहना है आबनाए हॉर्मुज़ में इस्राइली मलकियती जहाज़ समेत 2 जहाज़ों को फायरिंग करके रोक दिया गया। 1 लीटर तेल भी गुजरने नहीं देंगे। दुनिया तेल $200 फी बैरल खरीदने के लिए तैयार हो जाए। आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले अमरीका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों के हर जहाज़ को जायज़ हदफ समझा जाएगा। तेहरान में बैंक पर बमबारी के बाद ईरान का बड़ा ऐलान। ईरानी फौज के तर्जुमान कहते हैं खित्ते में मौजूद अमरीकी इसराइली बैंकों और इक़्तिसादी मराकज़ पर हमले का हक हासिल हो गया। अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सजा देंगे। अमरीका दर्दनाक कार्रवाई का इंतजार करे। जवाबी हमलों की पॉलिसी ख़त्म कर रहे हैं। मुसलसल हमले होंगे। खित्ते में जहां अमरीकी या इसराइली बैंक हैं आवाम उनसे 1 किलोमीटर दूर रहें। अमरीका इसराइल को मुकम्मल सजा मिलने तक एक के बाद एक हमला करेंगे। ईरान की धमकी के बाद आलमी मालियाती इदारों और बैंक मुलाजमीन को दुबई छोड़ने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक मुलाजमीन अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। बैनुल अक़वामी बैंक्स और मालियाती इदारों के मुलाजमीन को बज़रिया ईमेल मतला कर दिया गया। अमरीकी अखबार ने ईरान पर स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट में कहा कि ईरान में तालिबात के स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका है। स्कूल पर हमला अमरीकी फ़ौज की जानिब से हदफ के तयन की गलती थी। अमरीकी फ़ौजी तहकीकात के मुताबिक मिसाइल हमले के लिए पुराने डेटा का इस्तेमाल गलती का बाइस बना। अमरीकी फ़ौजी हुकाम का कहना है कि तहकीकात इब्तदाई मराहिल में है। कई सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए। ये भी जवाब सामने नहीं आया पुराने डेटे को डबल चेक क्यों नहीं किया गया। ईरानी अफवाज बैंक में बमबारी का बदला लेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा ईरान के सबसे पुराने बैंक की एक शाख पर बमबारी की गई। जिस वक्त बमबारी की गई उस वक्त बैंक में मुलाजमीन काम कर रहे थे। ईरान ने मिसाइल सलाहियतों को तबाह करने का बयान मुस्तरद कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ कहते हैं इब्तदाई मिसाइल हमले दुश्मन के रडार और दिफाई निज़ाम को नाकारा बनाने के लिए थे। अब ईरान अपनी पसंद के किसी भी मुकाम को निशाना बना सकता है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अब बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पज़ेश्कियान का बयान। कहा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अमरीकी और इसराइली बमबारी के दौरान जख्मी हुए थे। अमरीकी गलती पर सूरत हाल मजीद संगीन होगी। आबनाए हुर्मुज़ की तरह एक और समंदरी गुजरगाह बंद होने का खदशा। ईरानी आला सिक्योरिटी अहदेदार का दावा। अहदेदार की नाम जाहिर न करने पर अल जजीरा टीवी से गुफ्तगू। दूसरी अहम गुजरगाह का नाम बताने से गुरेज। कहा अमरीकी हमलों के बाइस जंग जल्द नए मरहले में दाखिल हो सकती है। ईरान के सिक्योरिटी और दिफाई मंसूबे मरहलावार और बतदरीज हैं। ईरान के पास अब भी इस्तेमाल करने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। अमरीका और इसराइल का जंगी जुनून। ईरान और लबनान में आग और खून। हमलों में मज़ीद 13 अफराद शहीद।
ईरान में एल्गोदर्स पर बमबारी से पास दौरान इनकलाब के कर्नल सैयद इब्राहिम समेत 9 अफराद शहीद। तब्रेज में 3 अफराद की शहादत। इसराइली फौज का पास दौरान इनकलाब के कमांडर सेंटर पर हमले में ईरानी एहलकारों की शहादत का दावा। बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी और जखीरा करने वाली तंसीबात को भी निशाना बनाने का दावा। तेहरान, असफहान, शिराज, कुम, मकरान और दीगर शहरों पर भी बमबारी। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके। ईरान में हमलों से अब तक तकरीबन 19,734 शहरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह का अल-अस्फ अल-माकूल के नाम से फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। नए हमले में इसराइल पर 100 रॉकेट फायर कर दिए। करियात, शमूना, हीफा और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कई रॉकेट फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। शुमाली और वस्ती इसराइल में बार बार सायरन बजते रहे। शुमाली इसराइल में एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली सीनियर दिफाई एहलकार का कहना है हिजबुल्लाह और ईरान ने शुमाली इसराइली पर मुश्तरका मिसाइल हमला किया है और जंग के आगाज के बाद ये पहला मरबूत हमला था। इसराइली फौज के मुताबिक बैरूत के जुनूबी मसाफात में हमले शुरू कर दिए। ओमानी खबर एजेंसी के मुताबिक सलाला पोर्ट पर ईरानी हमले से तेल के जखीरे में आग भड़क उठी। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इसराइल के जुनूबी लेबनान पर हमलों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक 10 दिनों से जारी जंग में हलाकतों की तादाद 634 तक पहुंच गई है। 8 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। तेहरान में अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद ईरानी कमांडर्स की नमाज जनाजा अदा। इनकलाब स्क्वायर पर हजारों शहरियों की नमाज जनाजा में शिरकत। ईरानी परचम और रहनुमाओं की तस्वीर थामे शोहदा की मैयतों के गिर्द लोग जमा। नारे लगाकर शहीद कमांडरों को खिराज अकीदत पेश किया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई भी हमलों में शहीद हुए। खामनाई की नमाज जनाजा और मैयत की तदफीन बारे ताहाल कोई ऐलान नहीं किया गया। अमरीकी और इसराइली बमबारी में शहीद 2 माह की ज़ैनब की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। पाकिस्तान का कुवैत पर हमलों पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की कुवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हालिया इलाकाई सूरत हाल बशमूल कुवैत पर हमलों पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म का अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी पर जोर। इसहाक डार का कुवैती क़यादत और अवाम से इज़हार यकजहती। सलामती काउंसिल से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। तारीख़ी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का इरादा। इसहाक डार का बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलील से भी राब्ता। मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। 2 तरफ़ा और कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने के लिए करीबी राब्ता जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $87 फी बैरल फरोख्त होने लगा। 2 दिन पहले खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल से तजावुज़ कर गई थी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत बढ़कर $5205 फी औंस हो गई। खत्ते में कशीदगी। पाकिस्तान का खलीजी ममालिक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता के लिए मज़ीद 84 परवाज़ें मनसूख। कराची से 20, इस्लामाबाद से 18, पेशावर से 16 परवाज़ें उड़ान ना भर सकें। लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई, अबू धाबी, कतर, कुवैत, बहरीन की 18 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से 12 दिन के दौरान मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई। लाहौर के इलाके मोहनी रोड पर अफसोसनाक वाकया। जहरीले केमिकल की बू से मियाँ बीवी जाँ बहक। 2 बच्चे मौजूदाना तौर पर बच गए। अहले मोहल्ला के मुताबिक मालिक मकान केमिकल का काम करता है। मियाँ बीवी की मौत केमिकल के असरात से हुई। फॉरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे करके केमिकल को कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।